Good morning, students. In the class 12th Commerce, we are studying the chapter cash flow statements. So, in this series, today we have discussed about how to calculate the missing figure of the sale amount or the purchase amount of the assets, or how to calculate the depreciation. So, in this class, we will solve the practical question number 23, that is based on the calculation of depreciation or the calculation of the purchase amount or the sale amount on the basis of the original cost basis. So first of all, read the question. So question number, as per question number 23, the balance in the property, plant and machinery account and the accumulated depreciation on as on 31st March 2015 on the 16th stood as follows. Plant and machinery account for 48 lakh, and the plant at 31st March 2016 65 lakh 40,000, and the accumulated depreciation of 2015 for 14 lakh 5,000, and on 16 22 lakh 10,000. So plant and machinery were costing 12 lakh 80,000, and accumulated depreciation there around 5 lakh 30,000 was sold at a loss of 2 lakh 60,000. So you are required to compute the amount of plant and machinery purchased and sold and the depreciation charged for the year, and how the each item related to the plant and machinery account will be reported in the statement of cash and cash flow. So for solving this question, first of all we have to prepare the plant and machinery account, then after we will prepare the accumulated depreciation account. So first of all we will put here the balances of the plant and machinery account. So on 1st April 2015 we can say here the opening balance is balance carried on, we can take here as a opening balance of 48 lakh, we will write as the 48 lakh as the opening balance. Now write here the closing balance by balance brought down with closing balance is given here 65 lakh 40,000. So write here the 65 lakh 40,000. Okay. So in the question, plant costing 12 lakh 80,000 accumulated depreciation thereon, 5 lakh 30,000 was sold at a loss of 2 lakh 60,000. तो यहाँ पे हमें सेल प्रोसीड्स नहीं दिया हुआ, यानी कि सेल प्रोसीड आर नॉट गिवन हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर एज ए ब्लैंक, keep it here as blank. Now keep the depreciation given in the question. Depreciation given here in the question 5 lakh 30,000. So 5 lakh 30,000 को हम यहाँ पे write down कर लें. And also there is given a loss on assets, loss on sale. तो sale पे जो हमें loss हुआ वो 2 lakh 60,000. तो अब हम यहाँ पे फिगर कैलकुलेट करेंगे जो कि सेल अमाउंट है. सेल यानी कि गुड्स जो प्लांट एंड मशीनरी को हमने कितने रुपए में सेल किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें. तो बैलेंस हम देखेंगे, बैलेंस का जो ओरिजिनल कॉस्ट था जिसकी 12 लाख 80,000 था, ठीक है, यानी कि 12 लाख 80,000 था, जिसको हमने सेल कितने में किया हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एज डेप्रिसिएशन की तरह उसको हम लोग 5 लाख 30,000 की तरह हमने यूज कर लिया है, और 2 लाख 60,000 हमें लॉस हुआ. तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दे तो हमें जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा अमाउंट होगा, सेल का अमाउंट हो जाएगा. तो 12 लाख 80,000 में से 7 लाख 90,000 को हम माइनस कर दें. तो 7 लाख 90,000 को यहाँ पे स्टूडेंट माइनस कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 9 और 11 में 7 या 4, यानी कि 4 लाख 90,000 को हमने क्या किया, एसेट्स को सेल किया है. यानी कि 4 लाख 90,000 में हमने एसेट्स को सेल किया, ये हमें पता चल गया. अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग इसको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम यहाँ पे टोटल करेंगे. If the credit balance is more than the debit balance, it means that we have purchased some assets in the during the year we have purchased the some assets, and if the credit balance debit balance is more than the credit balance, it means that we have sell the some assets. So let's check the balances. So
80,000, 12 लाख यहाँ पे माइनस कर 12 लाख 80,000 को हम प्लस करेंगे इसमें से 65 लाख 40,000 को हम प्लस करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 2 8 7 78 लाख 20,000 हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 78 लाख 20,000 इज द क्रेडिट बैलेंस नॉट डिडक्ट द डेबिट बैलेंस यानी कि credit balance is more than the debit balance. Debit balance is given 48 lakh, but credit balance is come here 78 lakh 20,000. So now deduct the 28 lakh from the credit balance. 28 lakh को हम यहाँ पे deduct करते हैं, तो we will get here the 302 30 lakh 20,000 का हमने जो क्या किया एसेट्स को ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया 30 लाख 20,000 जो कि आपके आंसर में मैच करता कि हम लोग यहाँ पे एसेट्स परचेज यानी कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज हमने किया है परचेज ऑफ मशीनरी यानी हम इसको बैंक के थ्रू पेमेंट भी किए होंगे यहाँ पे लिख देंगे 30 लाख 20,000 तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का परचेज किया बैलेंस देखिए 78 लाख 20,000 यहाँ पे बोथ द साइड 78 लाख 20,000 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का एसेट्स परचेज किया 30 लाख 20,000 का हमने क्या किया एसेट्स को परचेज किया ये हमने फाइंड आउट कर दिया बाय प्रिपेयरिंग द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओके सो इस तरीके से हमने यहाँ पर पैरा का हमने आंसर फाइंड कर लिया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल तो हमने परचेज और सेल के परचेज के अमाउंट हमने पता किया नाउ वी विल फाइंड आउट द फिगर ऑफ द डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए का लगाया गया ये अब हमें पता करना है प्लांट में तो यहाँ पे नाउ हम लोग प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैसे फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ पे ये है इसका डेबिट बैलेंस ये है इसका क्रेडिट बैलेंस तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज रिटन इन द क्रेडिट साइड तो वी विल राइट हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वी विल राइट हियर द opening balance is 14 lakh 5,000 14 lakh 5,000 we will write here and write here the closing balance to balance brought down 14 lakh 5,000 तो ये हो गया मतलब 14 लाख 5,000 तो यहाँ पे जो एसेट सेल किया गया है ड्यूरिंग द ईयर अब हमें इसको अकाउंट में हमें शो करना है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का एसेट सेल किया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया गया 30 लाख 12,000 का यहाँ पे अब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें पता करना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए हमें यहाँ पे इसको पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हमें पता करने के लिए पहले यहाँ पे मशीन कितने का हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है वो फिगर हम लोग लिख देंगे इस पे डेप्रिसिएशन हमने लगाया था तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन जिस पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे चार्ज कर चुके हैं तो डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी कितने बच्चे हैं तो स्टूडेंट अब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग यानी कि जो डेप्रिसिएशन का जो हमने गुड्स सोल्ड कर दिया उसके हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं 5,30,000 अब हम लोग यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा डेबिट और क्रेडिट साइड का वही हमारा क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर यानी कि यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे हमने कुछ डेप्रिसिएशन लगाया होगा और इस डेप्रिसिएशन के पार्ट का जो हमने एसेट सेल कर दिया उसके एसेट अकाउंट में हमने
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, जिसको जितने का डेप्रिसिएशन हम इस मशीन पे लगाए थे जिसको हमने सोल्ड आउट कर दिया, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसका हम बैलेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो 14 लाख ये 5 लाख 30,000 14 लाख 5,000 को ऐड करें तो जाएगा 19 लाख 35,000, ये वैल्यू जाएगा 19 लाख 35,000। इस तरीके से 19 लाख 35,000 हो गया। तो 19 लाख 35,000 में से अब यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर लें, बैलेंस एक सेकेंड, सॉरी तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा है, एक मिस्टेक हो गया, क्लोजिंग बैलेंस है 22,10,000 का, 22,10,000 तो ये हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 22,10,000 का तो ऐड कर लेगा हम लोग 22 लाख में 5 लाख तो 27 लाख 40,000, ये हो जाएगा 27 लाख 40,000। टोटल बैलेंस जो डेबिट साइड का क्या हो जाएगा 27 लाख 40,000 का हो जाएगा। 27 लाख 40,000 में से अब हम लोग ऐड माइनस कर ले 14 लाख 5,000 को, यहाँ पे 27 लाख 40,000 में से हम लोग माइनस कर ले 14 लाख 5,000 को। ये जो बैलेंसिंग, ये जो माइनस करने के बाद जो फिगर है ये हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज जो है तो माइनस कर ले 0 0 5 3 3 1 तो 13 लाख 35,000 यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था क्लास में 27 लाख 40,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना 13,35,000, यानी कि जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर कितने का किया 13,35,000 का जो डेप्रिसिएशन ये वाला अमाउंट, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और सेल और अकाउंट का, सेल और परचेज का अमाउंट हम लोग एसेट्स अकाउंट में प्रिपेयर करके अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, लिखने के बाद वहाँ पे ऐड नॉन कैश आइटम को लिखेंगे यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस वाले अमाउंट को लिखेंगे 13,35,000 को, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 2,60,000 हो जाएगा। फिर वहाँ पे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का ऊपर का कॉलम हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे उसमें क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे कि एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,20,000 का, यानी कि माइनस फिगर होगा 30,25,000 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 20,000 को, और उसके बाद ये इनफ्लो वाला आइटम है एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है 4,90,000 का, जो कि पॉजिटिव फिगर है। तो 30,20,000 में से 4,90,000 को जो माइनस करने के बाद आएगा वो है नेट कैश यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेट कैश यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,90,000 को माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो हमारा वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको प्रेजेंट किया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक, how to prepare the plant and machinery account and how to prepare the accumulated depreciation account. So that is all for the today. From tomorrow I hope that you will join on my classes on Zoom on the Zoom app. So we will take the online classes through the Zoom app. So I hope that you all will join me in the class. So that is all for the today. Now
You should solve all the question based on the topic. This type of the question you should solve. So from tomorrow we will discuss, we will take the topic cash flow from the financing activity. We will start the topic cash flow from the investing activity. So I hope you all are studying at your home. Okay, thank you. That is all for today. Have a nice day.